के अंदर आपने कितने मॉक्स दिए थे? आपने कोई मॉक्स ही नहीं दिए? आपने बिना मॉक्स के क्रैक किया हुआ है? इस बच्चे ने बिना मॉक्स के एग्जाम क्रैक किया हुआ है। हाँ ये देख, हाँ, ठीक है। तो आपने टोटल नंबर ऑफ मॉक्स कितने दिए? 70. IPMAT preparation journey uses come into 11th standard. You find out about ACE. You start studying. Okay. You get into Indore and you get into Indore because you want to come here. ऑल इंडिया रैंक 6 अभी हो गया खत्म वो. ठीक है, चलो एनीवेज इसका पॉडकास्ट यूट्यूब पे डला हुआ है। एस आईपीएम बहुत अच्छा था और मैं कहना चाहता हूँ जो लास्ट वीक मैराथन हुई थी हाँ। 2-3 बजे तक जागे थे हम. हाँ। पर वो मैं कहता हूँ एग्जैक्टली 5-6 क्वेश्चन सेम आए हैं. I was the 2-year ACE IPM student. I am AIR 35. In the last 6 years, we've been blessed with 1400 plus IIM selections, including 300 this year. Of those 300 students, we have 36 getting into IIM Indore this year, 18 from our full course and 18 from the PI course. In this video, we are having a meetup as the ritual goes with all our students who have gotten into IIM Indore this year, along with some of their seniors as well. So let's just hear about their experience journey, the preparation part, and also what it takes to get here. So without any further ado, let's begin. Hello, like every single year, this year as well, we are happy to share you guys our success stories, our journey of, acing IPMAT 2026. So like every single year, this year as well, we are collected together. We all, again reunited together with all the students who cracked IPMAT 2026 this year. And every single year, we tried to bribe them with lot of foods so that we can take some good reviews of or maybe bad reviews as well. But let's figure that out after interacting with students. क्या आपने ये वीडियो पहले देखी हुई है ऐसी कुछ? आपको अगर याद है तो? एक साल पहले तो देखी है, एग्जैक्ट सेम देखी है. वहाँ पर बैठा हुआ था कोई तो, मतलब मैं इधर बैठा हुआ देखी है. पर कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल एग्जैक्ट सेम से मिला है. पूल बहुत प्यारा है, बेटर देन आई एक्सपेक्टेड. खाना इज वे बेटर देन आई एक्सपेक्टेड और बहुत अच्छा लग रहा है. माय नेम इज प्रतिशराज सिंह चौहान. आई एम इंदौर. आई एम फ्रॉम पुणे एंड ऑल इंडिया रैंक 6. ऑल इंडिया रैंक 6 अभी हो गया खत्म वो. ठीक है, चलो एनीवेज इसका पॉडकास्ट यूट्यूब पे डला हुआ है. इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी. बट लेट्स इंटरेक्ट विद समवन एल्स. सो दिस इज राघव. तो मैंने देखा है कि यार आप बढ़िया बॉडी के फोटोज डालते हैं. हाँ? मेरा ऐसा कोई शौक नहीं था, ये डालता है स्टोरी तो दिख गई थी और कोई शौक नहीं है. ठीक है, अगर आप देख रही हो तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं, मैं स्ट्रेट हूँ. हाँ ठीक है. Yes, we believe you completely. ठीक है, हाँ, राघव. तो बताओ कि पहले तो लेट्स स्टार्ट विद how was your IPMAT preparation journey and experience? IPMAT preparation journey uses come into 11th standard. You find out about ACE. You start studying. Okay. You get into Indore and you get into Indore because you want to come here. Okay. हर साल around this time you'll watch a video about this lunch, and the entire purpose people watch about this lunch is to look at people, if you know what I mean. Okay. So that might be you, bro. no, that is you. This was the most paid comment I've ever felt. पता नहीं इसने क्या बोला है, but अच्छा सही बोला है कुछ, but ठीक है. हाँ. Okay. So Raghav, tell your IPMAT rank as well as Okay. were you ACE-IPM student? Yes, I was the 2-year ACE IPM student. I am AIR 35. और भैया मेरे कैमरा के पीछे बंदूक मत रखो. Yes, I'm not paid. इसका मतलब ये नहीं बाकी पेड है जो नहीं बोल रहा है, ये नाटक ही कर रहा है. ठीक है ना. एनीवेज लेट्स कम टू रुद्र. तो आप, मैंने सुना था कि आपको ऐसे सेक्टर 18 में कहीं रहने को मिला था. आप बहुत ही जिंदगी के स्ट्रगल्स देखे हैं हमारे ऑफलाइन. डोंट रिमाइंड मी अगेन भैया. यहाँ का खाना और वहाँ का खाना लाइक आप कंपेयर नहीं कर सकते. आप भी तो रहे हो. देखो, बजट कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है. अगर मेरे को कॉस्ट कटिंग नहीं करवाना तो प्लीज एसआईपी में एनरोल करें. बट अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, हाँ, तो आप ऑफलाइन स्टूडेंट थे एसआईपी. यस ऑफ कोर्स. So can you in 1 minute share your entire offline experience just about studying and not about staying? ओके, द स्टडिंग पार्ट वाज वेरी गुड. अब हमारे पास एक ऐसे भैया जो रात के 4 बजे उठ के हा कराएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे ऑफ कोर्स. एकदम पीछे पड़े हुए थे. आई हैव वीडियोस. ठीक है. हाँ, बाकी द फैकल्टी वाज वेरी नाइस. कहते हैं हम लोग के पास नमन सर हैं, रवि सर हैं, हार्दिक सर हैं. वो सारे लोग जो हैं हम लोग के लिए ऑलवेज अवेलेबल. और वहाँ पर जो सारे बच्चे ऑल आर वेरी कहते हैं कि उनको स्टडी करना है तो वहाँ पर बहुत आप इजीली डाउट सॉल्व करवा सकते हैं. आप भी अवेलेबल रहते हैं कभी कभी. हाँ, आपके पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं. बट ठीक है, चले. चल क्या रहा है? 100 रुपए और दे देना बेचारा. हाँ, स्कोर आने के बाद अवेलेबल हो जाता है. बाकी लोगों को भी रिकॉर्ड किया था. Hi Darshini. Hi. So tell about yourself a little and give us a tip about how to prepare for QA specifically. हाँ. QA. हाँ, QA section. हाँ. Okay, I'm Darshini. I'm from Tamil Nadu. My All India rank was 111.
For QA, I just would say just practice a lot. Like I don't think I did anything else. Just practice a lot. That's it. I did Anything else? Nothing else? nothing. I just practiced a lot. From where? From ASIPM. Okay, just do mocks. Just do mocks. Okay, fair. Apart from that, like you know, one thing that people struggle with lot is कि क्यों में silly errors बहुत हो जाते हैं. तो कुछ specific tip about that? I also made a lot of silly mistakes. So for that also, I say just do a lot of mocks. Okay. Because when you do a lot of mocks, you'll get to know what silly mistakes you make. And if you don't like a topic or if you're just bad at it, just skip it. Let's go to this table now. Okay, so my name is Ritvik and I'm going to IIM Indore and I've also converted IIM Ranchi by the way. And I'm Jammu and both. I'm Jammu and both गया है सर. So यार दो चीज़ पूछनी है. पहला तो let's say कोई बच्चा अभी स्टार्ट कर रहा है. एक टाइमलाइन का बहुत ज़्यादा पेन रहता है कि when is the right time to prepare. तो let's say जो बंदा अभी दिख रहा है तो उसको इस टाइम से क्या चीज़ें करनी चाहिए तो उनका प्रिपरेशन ऐसा ना लगे कि वो लेट हो है. तो what to start with if he or she is preparing 7-8 months back. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो एडवाइस मिला था जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की दैट वाज कि द बेस्ट टाइम टू स्टडी वाज yesterday but the second best time is today. So start as soon as possible एक तो and if you don't know what to start with then I think you should start with BA क्योंकि BA में ऐसा कुछ पढ़ने का होता नहीं है. So keep reading books and keep watching movies. ठीक है, I think that's the only thing you can do. Okay, keep reading. For me. ठीक है. Fair. So it's like VA is a very big priority. हाँ. Fair. And for QA I would say कि मॉड्यूल सॉल्व करो. स्वप्निल भैया जो लेक्चर्स देते हैं वो एकदम सुनो ठीक है. और मैराथन जो भी है जितने भी लेक्चर्स है सारे बिंज वॉच करो एंड मॉक्स जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मॉक्स. बेस्ट. ओके तो उसने कहीं हद तक VA का स्टार्टिंग बताया राइट. बट लेट्स से किसी को QA के लिए स्टार्ट करना है और मैं चाहता हूँ कि तू ना एकदम अनबायस्ड वैसा ओपिनियन दे कि यार अगर तू 1 साल पहले चले आता है तूने एग्जामिनेशन लिख दिया है अब नाउ दैट यू आर 1 year बैक एंड यू वांट टू स्टार्ट योर QA प्रिपरेशन तो क्या फंडामेंटल्स पे कितना कैसे टाइम स्पेंड करेगा कैसे करेगा वो बताओ. देखो भाई, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ. जैसे कि आपके पास अरुण शर्मा है. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप सीधा मॉक्स देना शुरू कर दो, सेक्शनल देना शुरू कर दो. मेरा ये है कि पहले आप लेक्चर्स देखो और LOD1 आप सबकी कंप्लीट करो. जब आपको बेसिक आता है उसके बाद ही आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं. तो उसके बाद आपको सेक्शंस और मॉक्स हमेशा बेसिक के बाद शुरू करने हैं. एंड सेकेंड एडवाइस जो बिन मांगी मैं देना चाहता हूँ कि इंटरव्यू आपकी प्रिपरेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है. जैसे मेरा स्कोर बिल्कुल बॉर्डर लाइन था लेकिन मेरे इंटरव्यू ने मेरा कन्वर्ट करवा दिया फर्स्ट लिस्ट में. तो आपको इंटरव्यू पे भी ध्यान देना है. फेयर. तो इंटरव्यू पे बट इंटरव्यू पे लेटर ऑन पे ध्यान देने का मन होता है ना. जब एग्जामिनेशन कर लेते फिर इंटरव्यू ध्यान देना. आप एग्जामिनेशन पे ध्यान दीजिए लेकिन आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आज भी कर सकते हैं क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी देखते हैं. नॉलेज आपकी टेस्ट हो रही है लेकिन वो पर्सनैलिटी देखते हैं. पर्सनैलिटी ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो आप अभी भी डेवलप कर सकते हैं. तो ये आप कर सकते हैं साथ में. फेयर. ओके दैट्स गुड. चलो लेट मी गो दैट साइड. हेलो. ठीक है, इन्हें QA VA का टिप्स दे दिया है. टेल मी अबाउट हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद ASIPM. ASIPM बहुत अच्छा था और मैं कहना चाहता हूँ जो लास्ट वीक मैराथन हुई थी 2-3 बजे तक जा गए थे हम. पर वो मैं कहता हूँ एग्जैक्टली 5-6 क्वेश्चन सेम आए हैं और वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस था. सारे साथ में कर रहे हैं और मज़ा भी आ रहा था. बिल्कुल बोरिंग नहीं थी. हंसते भी हो रहा था, फूड ब्रेक्स भी मिल रही थी, बातें भी चल रही थी और साथ साथ में अपने आप पढ़ाई हो रही थी. और उनने जो लास्ट में सारे टॉपिक्स कवर है, सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस कवर है VA की, क्वांट्स की और उसके बाद इंटरव्यू में तो हेल्प की. तो मैं बोलूँगा कि वो जो मैराथन्स हैं वो गेम चेंजर थी. मतलब पूरी प्रिपरेशन रिवाइज भी होगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो गए. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. Thank you so much. And any other, normal advice with respect to preparation when people get overwhelmed? तो कैसे रहना चाहिए स्टेबल? जैसे आपने भी पूछा टाइम का पूछा तो मैंने भी बहुत लेट ही शुरू की थी प्रिपरेशन. मैंने भी एकदम लास्ट में आ गई थी. द ओनली थिंग यू नीड टू फोकस इज कंसिस्टेंट रहना है. चाहे तुम एक दिन लोग कहते हैं 100 क्वेश्चन करो, नहीं तुम 20 भी कर रहे हो तुम ढंग से करो. अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे वो ऑटोमेटिकली पेपर का दिन शो हो जाएगा. थैंक यू सो मच गाइस. कि चलो आपने इंटरव्यू प्रिपरेशन ही करी थी राइट. तो मेरे को इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए बच्चों को टिप्स दीजिए कि क्या इंटरव्यू प्रिपरेशन जल्दी करना नेसेसिटी होता है या फिर लेट भी कर सकते हैं, एग्जामिनेशन के बाद भी कर सकते हैं, क्या चीज़ पता है? ओके, बिकॉज आई वॉज सो लेट फॉर दिस इंटरव्यू मैंने एक चीज़ तो रियलाइज़ कर ली. बहुत सारा कंटेंट है. इतना कंटेंट मैं कवर नहीं कर सकता इतने शॉर्ट टाइम पे. जो मैं स्किप अराउंड किया था कंटेंट में बहुत ज़्यादा चीज़ें मिस तो हुई हैं. अगर मैं थोड़ा जल्दी होता आई वुड हैव श्योरली गॉन थ्रू ऑल द कंटेंट एंड आई एम श्योर यू स्टिल मैनेज टू क्रैक इट राइट. सो क्या ओवरऑल मैं काफ़ी कुछ ब्रीफली मैंने ग्लॉस अराउंड किया सब चीज़ के लिए. जीके के लिए काफ़ी ज़्यादा गया. सर का जो पढ़ाने का तरीका आई रियली लाइक इट. ओके थैंक यू सो मच. लेट्स मूव टू दैट टेबल. मैं ये 1-2 सीनियर्स बैठे हुए हैं, इनसे क्या ही एडवाइस लेना, बट ठीक है ना. बट लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट दैट हाउ वाज योर 1 year एक्सपीरियंस इन IIM इंदौर. 1 साल कैसा बीता अभी तक, कैसा लग रहा है?
बेकार नहीं नहीं बच्चों को मोटिवेट करना था, डिमोटिवेट नहीं। नहीं। ठीक है, हाँ। सॉरी अरे नहीं बढ़िया है. इट्स लाइक कि अ ड्रीम कम ट्रू इफ यू सी. इट्स नॉट अबाउट कॉलेज, इट्स अबाउट हाउ वेल यू कैन यूज द रिसोर्सेज दैट आर देयर इन द कॉलेज, राइट? सो तुम कोई भी कॉलेज में जाओ, ऑफ कोर्स आई एम इंदौर एंड अदर IIMs आर ऑल्सो लाइक दे आर कंपेरेटिवली बेटर in the other than some colleges, but अगर तुम किसी अदर कॉलेज में भी जा रहे हो, it matters more कि अगर तुम उस कॉलेज के रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ. ठीक है, तो मतलब it's like a college is a not a the major factor, but if you are able to utilize resources of all the other colleges, it's gonna be beneficial in your entire career. Okay, that's a great piece of advice. मतलब आपने मॉक्स प्रैक्टिस की होगी, राइट? तो मॉक स्ट्रैटेजी का क्या लॉजिक रहता है, कैसे बनाते हो वो बताओ. ASIPM का तो एक्सपीरियंस काफ़ी फन था मेरा. मतलब मेरे इंटरव्यूज व्योमिका और आन्यादी के साथ हुए थे तो काफ़ी इंसाइटफुल थे. तो आई थिंक ओवरऑल गुड एंड फन. उसके अलावा मेरे मॉक्स में ये था कि मेरी RC खराब थी. सो मतलब जहाँ पे वीक पॉइंट दिखता था मैं वहाँ पे वर्क कर देता था कि ठीक है RC खराब है, सेंटेंस करेक्शन खराब है, मैथ्स में टाइमिंग वाइमिंग, तो लाइक अपना पॉइंट पता लगाओ, उस पर काम कर दो, बेस्ट वही होता है. बाकी थोड़ा बहुत खुद से करना पड़ता ही है. टीचर से कितनी हेल्प ले सकते हो. आई थिंक बेस्ट खुद का जितना हेल्प कर सकते हो उतना बेटर है. ओके, नहीं तो मैं किस पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ कि लेट्स से आपने मॉक्स दिया, राइट? तो व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग अ मॉक, तो वी सजेस्ट स्टूडेंट्स कि यार राउंड 1 में जाओ, राउंड 2 में जाओ, राउंड 3 में जाओ. तो व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग दोज मॉक्स, तब आप स्पेसिफिकली क्या स्ट्रैटेजीज बनाते थे? राउंड 1 लाइक पहले एक बार स्किम थ्रू, फिर दूसरी बार फिर दूसरे जो आ रहे हैं वो करते जाओ, ऐसे कोई स्ट्रैटेजी बनाते थे आप? हाँ, सेम मैंने ND वगैरह सब में यही करा ट्राई. एंड परफेक्ट होती है ये कि राउंड 1 करो 100% क्वेश्चंस जो पक्का श्योर है होगा. सेकंड में थोड़ा कि मे भी हो जाए. थर्ड में कि अब टाइम बचा है, क्या करना है कर लेते हैं. ओके, फेयर. ओके, गॉट इट. एक साल में व्हाट इज दैट वन थिंग दैट चेंज अ लॉट फॉर यू? लाइक मतलब क्या आप कह सकते हो कि दिस इज दिस वन एक्स फैक्टर दैट आई रियली फेल्ट गुड इन बीइंग इन पार्ट ऑफ IIM Indore? One part I'll say is the campus life, क्योंकि you name the sport and you have it in the campus. So जो वो फर्स्ट ईयर की जो लाइफ एंजॉय करनी होती है, you can do that एकदम अच्छे से खेलो वेलो, मज़ा आता है. वो कैंपस की लाइफ बहुत अच्छी है. Okay. Campus life is like another factor that you learn from it. मैं सोच रहा था कुछ बोलेगा यार कि मेरे जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, बंदे ने क्या बोला, स्पोर्ट्स खेलने को बहुत मिला है. What about VA specifically? Let's talk about VA. तो any student who is just starting now, what do you think? What is the importance of reading? क्या रीडिंग से चेंजेस होते हैं? अच्छा, स्पेसिफिकली RC के बारे में बताओ थोड़ा सा. VA के लिए स्पेसिफिक बताओ, क्योंकि मुझे लगता है अभी तक अच्छी एडवाइस दिया है. I think VA is like a very complicated topic when it comes to like understanding it. Most of the options that you will see will be like somewhat pertinent to what you're reading, but you have to figure out the context. And so it's not just about reading. Just like watch anything in like English, right? If you like to like you watch YouTube, just watch that in English. Like make yourself familiar with the language, and reading is just another part of that. So like you don't have to pressure yourself into reading if you don't like it. Just consume English from another part, from another method, and yeah. एंड ऑन एन एवरेज आप कितने मॉक्स दिए थे? टोटल मॉक्स कितने दिए थे? Mocks? हाँ, मतलब नंबर ऑफ मॉक्स. Given many mocks, sir. I Not was in given the many PI mocks. prop, yeah. नहीं Like मतलब PI इन prep- जनरल आपने मॉक्स, अरे अपनी प्रिपरेशन के अंदर आपने कितने मॉक्स दिए थे? I आपने कोई haven't मॉक्स ही नहीं given- दिए? नहीं, आपने बिना मॉक्स के क्रैक किया हुआ है? इस बच्चे ने बिना मॉक्स के एग्जाम क्रैक किया हुआ I है? like give like one mock that was only for like for just like looking at the structure. Are you sure? BA carried me, sir. That's why you asked me the right question. ठीक है, don't take any such random inspiration as such. ठीक है, and I don't know, this is a random. हाँ, ये देख. ठीक है, तो आपने टोटल नंबर ऑफ मॉक्स कितने दिए? 70 मॉक्स. तो क्या क्वांटिटी ऑफ मॉक्स के साथ आपको ये लगता है कि हाउ डिड योर स्ट्रैटेजी चेंज? मतलब आपका प्रिपरेशन लेवल में आपने कैसे कैसे किया? क्योंकि एक जो मेजर गलती बच्चे करते हैं, दे वुड ट्राई टू डू वे मेनी मॉक्स देन दे कैन दैट इज इवन पॉसिबल. आई ऑलवेज सजेस्ट देम कि यार 1-2 मॉक्स के इसमें सफिशिएंट गैप रखो, उतना प्रिपरेशन करो. तो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द सेम? मेरे पास तो एक पूरा साल था, मैं ड्रॉपर था. तो मैं हर हफ्ते में एक देता था आराम से, बढ़िया. एक हफ्ते में 1-2. तो मैं अपना एक वीकनेस पकड़ता था, उसको पहले अगले वाले में क्लियर करता था. देन आई ट्राइड कि अगले वाले में वो ना हो बस, फिर अगले वाले में अगली देखी. तो इससे लाइक स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे आप कह रहे हो. एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मॉक्स तो 30-40 होते हैं. मैंने बहुत एक्स्ट्रा इसलिए दे दिए कि कोई गलती की गुंजाइश ना हो. ड्रॉपर हूँ, वापस रुक गया तो ड्यू जाना पड़ जाएगा. बट नहीं, that's what like like issue said कि अगर आप थोड़ा स्पेसिंग अच्छे से रखते तो छोटी वीकनेस, probably you don't have to fix everything, but एक वीकनेस भी एक टाइम पे अटैक करेंगे, so that will work. Okay, great piece of advice. इसको इग्नोर कर. Lord Vidushi is back again. Lord Vidushi is we have already uploaded her podcast, but still, what is that one piece of advice that you would give after eating the food? मतलब ऐसा आपको खाना कैसा लगा?
नहीं इंदौर आने से पहले सब लोग खा लो अच्छे से, मतलब because मेस में अच्छा खाना तो नहीं ओके, तो मैंने ये भी सुना है कि आई एम इंदौर में, और यूजुअली इन IIMs व्हाट हैपेंस इज कि दे वुड गिव यू गुड फूड. आपको पता है, आपको जो मेस में भी अच्छा खाना अगर थोड़ा बहुत भी मिल रहा है तो वो गुड है अभी, क्योंकि जब बच्चे ज्वाइन कर रहे होते हैं ना तो मेस एक्चुअली मेक्स गुड फूड. अभी तीसरे दिन पे खाना बहुत डिटोरेट हो जाएगा, तो आपको जो गंदा लग रहा है वो और गंदा होने वाला है. ठीक है, अरे ठीक है, नाटक वो आज कुछ बिट्स भी हुआ था ना शायद. तो ऐसा खाने के लिए थोड़ी पढ़ने जाऊंगी. नहीं, मैं बोल रहा था आज के खाने का एक्सपीरियंस कैसा था. आज तो अच्छा था. अब बताइए SIP में का एक्सपीरियंस कैसा था. एकदम फर्स्ट क्लास, खाना भी फर्स्ट क्लास, SIP में फर्स्ट क्लास. हाँ, तो ये इसी को कहते हैं एनालॉजी, इसे कहते हैं सैंडविच मार्केटिंग मेथड, कि आप खाना खिला दो फिर पूछो तो शायद अच्छा रिव्यू हो जाएगा. ठीक है, हेलो, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन वन लाइनर कीजिए. ये मेरा नाम है, मैं इंदौर जा रही हूँ, एंड देन गिव एनी broad tip about how to start how to manage time, like because IPMAT is a competitive examination, trying to manage it with आप fresher है dropper थे, fresher थे, तो हाँ, तो great. How did you manage your school academics with IPMAT preparation? Okay, so hello, I'm Yashvi and I got shortlisted for IIM Indore. So time management के लिए I would say कि boards के लिए तो आप क्लास में ध्यान दे दोगे और डेली टेस्ट के लिए प्रेप कर लोगे तो हो जाएगा. और ये IPMAT के लिए भी कंसिस्टेंट तो आपको रहना ही पड़ेगा, ऑफ कोर्स दैट्स अ गिवन. और मॉक टेस्ट देना ही है. आप शायद पहले वीक में या फिर 2 वीक में 1-2 मॉक टेस्ट दो, फिर जैसे ही एग्जाम नियर आ रहे हैं आपको आपके मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ानी पड़ेगी. सो यस, दिस वे लाइक वन थिंग इज कि जब स्कूल्स का टाइम प्रेशर या काम बढ़ जाता है तो कैसे मैनेज करते थे, तब IPMAT का प्रिपरेशन या टाइमलाइन कैसे निकाल के रखते थे आप? तो तब आपको प्रायोरिटी वाइज करना पड़ेगा कि ओके स्कूल का काम बढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी आई एम नॉट एबल टू गिव टाइम टू IPMAT, तो अभी स्कूल को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं. फिर जितना टाइम मैं नहीं दे पाई उतना वो बैकलॉग मुझे क्लियर कर ही देना है उसी वीक में, या फिर जस्ट लाइक नेक्स्ट डे और समथिंग. वो बैकलॉग को don't keep backlogging that backlog. Okay, don't keep backlogging your backlog. Fair. And That so Lord Vidushi has some things to say as usual. Just that every single day, no matter how heavy it gets, even half an hour or 20 minutes, but doing your RC daily and just doing 10 quant problems is very important. That consistency is important. School का pressure रहेगा ही रहेगा, that will always be there. But even giving that much to maintain the momentum is quite important. You can't just leave IPMAT one day. Okay, fair, very true. ये टाइमलाइन वाला था. जैसे विदुषी तो हमेशा अच्छी एडवाइस देती है, इसका पॉडकास्ट ऐसे डला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, इसने बहुत अच्छी एडवाइसेस दी है. ठीक है, हेलो, हाय. सो क्विक इंट्रोडक्शन. एंड मैंने ना प्रिपरेशन का सब कुछ पूछ लिया बच्चों से. इंटरव्यू को भी कुछ बच्चों ने बताया था, बट स्टिल लेट्स से अगर एक बड़ा सा कैवियाट रहता है कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर IPMAT, बट फिर बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करनी है. तो इज देयर अ मेन हेडेक स्टूडेंट शुड टेक अर्ली ऑन, या फिर नहीं हो जाता है? नहीं, आई फील इंटरव्यू तो हो जाता है, मतलब पर ढंग से करना होता है. एक तो व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज योर स्पीकिंग स्किल्स, बिकॉज एज लॉन्ग एज यू नो व्हाट यू आर स्पीकिंग यू आर गुड. एंड देन कैच तो इम्पॉर्टेंट होता ही है. तो एज लॉन्ग एज स्कूल ढंग से करा है, बोर्ड्स ढंग से करा है, हो जाता है इंटरव्यू प्रेप 3-4 दिन में. अपने सिटी के बारे में ढंग से पता कर लो एंड बस बी कॉन्फिडेंट, दैट्स इट. हाउ वाज योर D-Day एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस? एग्जामिनेशन मतलब जब जिस दिन आपने एग्जाम लिखा था उस दिन क्या हुआ था? तो बेसिकली मैं अपने फ्रेंड्स साथ कारपूल करके गई थी. ओके. So we were laughing and giggling the entire ride. Okay. But then exam se like before getting off the car, I read my notes and formulas for 5 minutes. Okay. And then बस I'm like a very chill person. I believe ऐसे stress बस लोगे तो गंदा ही जाएगा. Okay. तो बस आकर ऐसे exam से पहले भगवान के नाम पढ़ रही थी. Okay. And then I just gave my exam and then yeah सोचा भी नहीं उसके बारे में. हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो it's okay. Okay. Great. ठीक है. Hello. Hi. So we also have another, different, this is the kind of seniors that you get to interact in this video. So Yashi, why don't you tell us about your journey? Where did you do your UG, and then how did you enter into IIM Indore, and everything about. A lot of students here would be watching and maybe thinking कि यार मेरा IIM Indore नहीं हुआ, देखो यार इनका हो गया कैसा, तो शायद आप उनको कुछ टिप्स दे सकते हैं. Yeah, guys. So I'm Yashi. I have completed my undergraduation from IIM Jammu, and then gave CAT, and now I'm here. I'm in MBA second year right now. So first of all, it feels very interesting to at least talk to these people right now. And then I was in their shoes like 5 years before, and it was completely new. Everything was new for me as well. But in IIM Jammu. But then again, I feel like at that time I remember seeing such videos where people were going to IIM Indore. It was my dream as well at that time. But sometimes it just doesn't work for you, and then it's fine. It's okay.
You have your own journey. Then again, opportunities come over. I had written CAT at that time in my third year, and then somehow life comes full circle, converted I'm Indore, and then now I'm here interacting with the IPM juniors of my own. So yeah, I think just don't lose hope, even if things doesn't work out in your way at some time. Life comes full circle. It will give you other opportunities as well. Exactly. So life come do like देखो यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी जो आई एम रोहतक से भी है, ठीक है, बट एक कॉलेज का नाम है आई एम अहमदाबाद, ठीक है, जो शायद कोई स्टेप इन करे ना करे, बट हाँ आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हो यूजी के लिए, डोंट वरी अबाउट इट, यू ऑलवेज हैव इमेंस अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड यू विल बी एबल टू स्टेप इनटू सम अदर प्लेस एंड यू नेवर नो. ओके, ट्रस्ट मी. Okay, so my name is Harshi and I started preparing for IPMAT after my boards, which is around March. And it was pretty late to start because I wasn't aware of this exam. So I think ACE IPM helped me a lot because their material is really well sorted and organized, especially their quants. My maths, I'm a PCM student. However, my maths, I had a tough time with it. But I think the lectures by Swapnil Bhaiya and also their videos, they really helped a lot. Aside from that, their marathon series was really helpful to me because I was short on time. So I think I would really recommend ACE IPM. रिकमेंड वाला वर्ड तो ऐसा लगता है पेड ही है प्रॉपर. हाँ, ऐसा लग रहा है प्रॉपर पेड कमेंट करा रहा हूँ, बट ठीक है ना. थ्रू आउट द ईयर व्हाट ऑल थिंग्स थिंक यू शुड डूज एंड नॉन डूज, मतलब कौन कौन सी चीज़ें जो आपको मस्ट करनी चाहिए. एक तो जैसे मॉक्स ही हो गया, ये हो गया, ऐसी कुछ थोड़ी ब्रॉडर एडवाइसेस दो, क्योंकि मैं बहुत स्पेसिफिक चीज़ें पूछ चुका हूँ. Okay, if you're in 12th, I would say enjoy your 12th life as well. Okay, अच्छा. Yeah, but like while you're balancing with IPM, enjoy 12th as much as you can. I mean, I was the head of my school, I did a lot of things, but then you will have time and you'll have to manage yourself because that is what IPM is about, managing yourself. So if you can't manage right now, I would say it would be you'll have a tough time here as well. And other than that, I think mocks dena zaruri, and don't compare yourself to other score. There were a lot of people who scored 270, 216 mocks but could not do as much in the real exam. So it's about what's happening at that exam center. It's about the doom day. Yeah. Okay, that's a fair piece of advice. Don't get overwhelmed by your low scores. But I guess I think this is where we end the video. I hope you liked the whole interaction, and thank you so much. In case you're preparing for IPMAT 2027, 2028, you can check out our courses. We have launched our batches for 28, 27 as well. Say it self-prep, say it live classes, say it offline as well. You can check out our Noida center. Okay, thank you so much. Bye-bye. Ready to ace IPM? Get started by going on aceipm.com, and over there you'll see a free counseling button. You need to click on that and enter all your details so that one of your future seniors can get in touch with you and clarify all your queries about IPM and ACE IPM. Thank you.